Hello, my dear students. In this class, we will continue with the simple harmonic motion, and in this class, we will study velocity of an object moving with simple harmonic motion. So, at this point, you may think that we have already done the equation of velocity, that is v equals v naught cos omega t, which can be further written as v equals omega x naught cos omega t, right? Yes, we have done this equation, we have seen the graphs of this equation, but there's another equation which is v equals plus minus omega under root of x naught square minus x square, right? So basically in this particular equation the variable is x. In the first equation, you can find out the value of different velocities at different times. So that is a function of time. But in this particular equation, you can find out the value with the correct sign, with the correct direction at different displacements, right? So इसके अंदर the variable is displacement, ठीक है? And this equation would be given in the exam. You don't have to memorize this equation. This equation would be there in the data, right? So you can find out the value of different velocities at different displacements. ठीक है? मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, इस इक्वेशन से प्रूव होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो आएगी, और किसी भी और डिस्प्लेसमेंट पर आप इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज फंक्शन ऑफ displacement. The derivation of this equation is not the part of syllabus. So हम इसकी derivation की तरफ नहीं जाएंगे, वीडियो prolong हो जाएगी. आप सिर्फ ये समझे कि this equation can be derived from the equation of displacement, which is x equals x naught sin omega t, and the equation of velocity, that is v equals omega x naught cos omega t. वहां से इसकी equation derive हो जाएगी, but that derivation is not the part of syllabus, right? So here we have a pendulum once again. इस pendulum के along आपके पास तीन points हैं. This is point O, ठीक है? यहाँ पर displacement 0 है. And then you have two extremes. Extreme A, which is at the right side of mean position, and extreme B, which is at the left side of mean position, right? So as we know that velocity is not a scalar quantity, velocity is a vector quantity, ठीक है? So towards right hand side, all the velocities will be represented with plus sign, and towards left hand side, all the velocities will be represented by negative sign. ठीक है? So according to this equation, let's try to find out the velocities of an object. ठीक है? So सबसे पहले आप लोग लिखेंगे शाबाश at O. What is O? O is its mean position, and its mean position, its displacement is 0. ठीक है? आप velocity की equation लिखेंगे. Velocity is equal to plus minus omega under root of x naught square minus, अब यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो सब्सिट्यूट करना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. x naught square minus 0 square, velocity is coming out to be plus minus omega x naught, and this is the value of maximum velocity. So at mean position velocity is maximum. अब ये वेलोसिटी प्लस और माइनस साइन दोनों के साथ अपेयर हो रही है, तो आपको याद रखना होगा कि एक ऑसिलेशन में पेंडुलम मीन पोजीशन से राइट साइड पर, और राइट आफ्टर हाफ ऑसिलेशन मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर मूव करेगा. ठीक है? सो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये बात तो डिसाइड होगी. और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है? As you know that extreme positions are the turning point, तो turning point पर velocity 0 होती है. उसको भी शो करते हैं at extreme, at x is equal to x naught, v is equal to plus minus omega under root of x naught square minus x naught square, right? So जब x naught square में से minus होगा, you are left with 0, और जब 0 इस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा. So at this extreme position, velocity is once again
जीरो। सो दोनों साइड्स पे, दोनों एक्सट्रीम्स पर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वुड बी जीरो। ए पर भी वेलोसिटी जीरो है और बी पर भी वेलोसिटी जीरो है। देयर इज वन अदर रीजन कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है, दैट इज दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और पॉइंट को मार्क करना है, एंड दैट पॉइंट इज इट्स हाफ वे मार्क। ठीक है। जब पेंडुलम हाफ वे मार्क पर होता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है एक्स नॉट बाय टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, एक्स नॉट बाय टू वुड बी एग्जैक्टली द हाफ वे। 5 divided by 2 and that would be 2.5 centimeters. So this displacement is x naught by 2 with plus sign because it is at the right side of mean position, and this displacement would be minus x naught, because here the sign is negative because the pendulum is present at right, left side of mean position, so displacement is minus x naught by 2. ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एक्स नॉट बाय टू? तो आप लोग लिख रहे हैं शाबाश, एट हाफ वे मार्क वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय टू, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वुड बी प्लस माइनस ओमेगा होल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाय टू होल स्क्वायर। राइट, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। दिस इज फर्दर रिटन एज प्लस माइनस ओमेगा होल अंडर रूट ऑफ, जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे और एलसीएम लेंगे और आंसर वुड बी 4, एंड दिस वुड बी 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। ठीक है। अपॉन सिंप्लीफिकेशन योर आंसर वुड बी प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 ओमेगा x नॉट। ठीक है। एंड इन फैक्ट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्स नॉट इज v नॉट। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3/4 यूजिंग द कैलकुलेटर। Under root of 3 divided by 4 is 0.866. So this is further written as plus minus 0.866 of maximum velocity v naught. तो यहां पर आपको एक बात सोचने की जरूरत यह है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी एग्जैक्टली हाफ नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 86.8% ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि मीन पोजीशन पे थी। ऐसा क्यों है? देखिए, वेलोसिटी लीनियरली रिड्यूस नहीं कर रही। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ ना टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो एक कर्व की फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी लीनियरली चेंज नहीं कर रही। इनिशियली क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स कम है तो डिसेलरेशंस भी कम है, वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय स्मॉल मैग्नीट्यूड, और ऑनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाती है, डिसेलरेशंस भी बढ़ जाती हैं बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल। तो मेजर चंक ऑफ डिसेलरेशन इज आफ्टर द हाफ वे मार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.866 v नॉट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लस माइनस साइन? देखिए, एक स्विंग में लेट्स अज्यूम कि जो आपका स्विंग है, एक ऑसिलेशन वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम द मीन पोजीशन। पेंडुलम विल पास थ्रू दिस मार्क 2 टाइम्स। 2 बार पास होगा। एक बारी जब ये O टू A मूव कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी का साइन प्लस होगा बिकॉज वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट, और एक बारी लेफ्ट पर मूव करेगा फ्रॉम A बैक टू O, दिस टाइम द साइन ऑफ वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव। ठीक है। सो एक बारी वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव और एक बारी वेलोसिटी का साइन नेगेटिव, और यही चीज रेप्लिकेट होगी मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे व्हेन द पेंडुलम इज मूविंग फ्रॉम O टू B। ठीक है। द साइन ऑफ वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव डेफिनेटली बिकॉज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, और इस साइड पर आते हुए द साइन ऑफ वेलोसिटी वुड बी पॉजिटिव। सो एट दिस टाइम वी आर इन अ सिचुएशन टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ velocity against displacement.
So we will write velocity displacement graph. Velocity displacement graph. ठीक है. We will plot this graph in 4 quadrants. ठीक है, like this. So velocity will be plotted along y-axis and displacement will be plotted against x-axis. So x-axis को y-axis को लेबल करेंगे velocity in meters per second और x-axis को लेबल करेंगे displacement in meters. ठीक है. नाउ डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी है. मेन पोजीशन से राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव. ठीक है. सो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्स नॉट एंड दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विच इज माइनस एक्स नॉट. राइट. What is the value of maximum velocity? V naught, which is also written as omega x naught, and the value of maximum negative velocity is minus V naught, which is written by minus omega x naught sine. ठीक है. अब आपको यह पता है कि जब पेंडुलम मीन पोजीशन से पास करता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. So at mean position पर your displacement is 0, velocity would be maximum. Now maximum velocity is omega x naught in one direction. Let's suppose right side पे है, लेकिन mean position से जब वापस रिटर्न करेगा तो लेफ्ट साइड पर भी मूव करेगा पेंडुलम या कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम बट विद नेगेटिव साइन. राइट. एंड व्हाट हैपेंस एट एक्सट्रीम पोजीशन? आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी जीरो होती है बिकॉज दैट इज अ टर्निंग पॉइंट. और अभी हमने इसको इक्वेशन से भी प्रूव किया है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी इज जीरो. ठीक है. सो वेलोसिटी का आप यहां पर पॉइंट्स प्लेस करेंगे. एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो. अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वाई वाले क्वांटिटी की वैल्यू ही जीरो होती है. सो बेसिकली हियर वी हैव 4 गाइडेड पॉइंट्स जिसको यूज करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो वी मे अज्यूम कि ये लाइन इस तरह की फॉर्म होती है. ठीक है. बट आई थिंक दैट इस स्टेज पे वी नीड सम मोर गाइडेड पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल हमने एक और गाइडेड पॉइंट पढ़ा था विच वाज हाफ वे पॉइंट x नॉट बाय 2 और माइनस एक्स नॉट बाय 2. राइट. सो x नॉट बाय 2 और माइनस एक्स नॉट बाय 2 पे हम वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर चुके हैं. देखिए शाबाश. एट x नॉट बाय 2 द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0.866 v नॉट. हाफ वे पे एक साइड पर ये वेलोसिटी प्लस साइन के साथ और दूसरी साइड पर ये वेलोसिटी नेगेटिव साइन के साथ. और मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर भी एक बार ये वेलोसिटी माइनस साइन के साथ जब ये लेफ्ट पे जा रहा है और एक बार ये वेलोसिटी प्लस साइन के साथ जब ये राइट साइड पे मूव कर रहा है. राइट. सो वी हैव सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पॉइंट. ठीक है. यहां पे मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. x नॉट बाय 2 पर क्या वेलोसिटी है? इट इज 0.866 of v naught and minus 0.866 of v naught. ठीक है. तो इस वैल्यू पे वेलोसिटीज को स्केच करते हैं. इस पोजीशन पे एक बारी वेलोसिटी आएगी प्लस साइन के साथ और एक बारी वेलोसिटी आएगी नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है. सो वी हैव 4 मोर गाइडेड पॉइंट्स. ठीक है. वन ऑफ देम इज दिस पॉइंट. ठीक है. और दिस पॉइंट. मतलब प्लस एक्स नॉट बाई 2 पे राइट साइड पर जाते हुए वेलोसिटी 0.866 वी नॉट और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर आते हुए वेलोसिटी इज minus 0.866 v naught, and this situation will repeat at the other side.
ठीक है। सो माइनस एक्स नॉट बाई टू पर भी आपके पास वेलोसिटी आएगी प्लस 0.866 वी नॉट और माइनस 0.866 वी नॉट. So let's count all the guided points. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 guided points to draw to sketch this graph. ठीक है. सो बेसिकली इस ग्राफ को स्केच करने के लिए भी आपको यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इट वुड बी मोर और लेस लाइक अ सर्कल. अब अगर आप इस तरह की शेप को स्केच करते हैं, आपको बताया कि आपके 4 पॉइंट स्किप हो रहे हैं. पॉइंट 2, पॉइंट 4, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8, ये सारे स्किप हो रहे हैं. इनको इंक्लूड करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व लाइंस. ठीक है. और ये कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा. सो व्हेन यू विल ड्रॉ द कर्व लाइंस, दिस ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. ठीक है. एग्जामिनर परफेक्ट शेप जो है आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपको बिल्कुल भी ग्राफ का पता ना हो कि आप ग्राफ में क्या कर रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली लेट्स अज्यूम दैट यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन. अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो इस ग्राफ की इक्वेशन उस पर जो अप्लाई होगी, दैट इक्वेशन इज v इक्वल्स प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. This is the equation of this graph. ठीक है. Let's do a question. You will not going to forget that the shape of this graph is a circle. मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूं. ठीक है. जब भी आप ये वाला ग्राफ देखेंगे, y एक्सिस पर वेलोसिटी और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होगी, योर ग्राफ वुड बी मोर और लेस लाइक अ सर्कल. ठीक है. और इस सर्कल को हम प्लेस कर देते हैं इस एक्सिस के थोड़ा सा सेंटर के साथ अलाइन कर देते हैं. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अच्छा. So now you have a question in front of you that there is a pendulum which has maximum displacement of plus minus 5 centimeters. The value of its frequency is 2 hertz. ठीक है. Okay. He is asking you for the value of maximum velocity. ठीक है. Maximum velocity is v naught, which is given by the equation omega x naught, right? So the value of omega is 2 pi f multiplied by x naught. 2 multiplied by pi multiplied by f, which is 2 multiplied by x naught, which is 5. यहां से इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें. 2 pi multiplied by 2 multiplied by 5. The answer is coming out to be 62.8 centimeters per second. ठीक है. Now he is asking you the value of velocity. Find velocity at x is equal to 1.5 centimeters. ठीक है. जब भी किसी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पे आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन v इक्वल्स प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ x naught square minus x square. You have the value of all the variables. V equals plus minus omega is once again 2 pi f. The value of frequency is 2 hertz under root of x naught square. ठीक है. x naught is 5. 5 square minus 1.5 square. Just substitute the values in your calculator. V equals 2 pi multiply by 2 multiply by under root of 5 square minus 1.5 square. Two pi multiply by 2 and this value is coming out to be 59.5
3 centimeters per second. So this is how you can find out the value of velocity at different displacements of pendulum moving with simple harmonic motion, right? So in the upcoming videos we will discuss energies of an object moving with simple harmonic motion. ठीक है, बड़ी important video है. For that you have to stay tuned. Thank you.